Hello students, I hope you all are fine. We are reading lesson 1 of Flamingo, the last lesson. In this lesson, we are reading about French, who is a schoolboy. He was already late for school when our lesson begins. He was in great fear of being scolded by his teacher, M. Hamel, as he was already late and he had not prepared his lesson on participles. When he passed the town hall, he saw a great crowd, but he had no time to wait to stop there. He reached to the school, and there he usually found sounds of opening and closing of desks, lesson repeated in unison, and teacher's great ruler rapping on the table. Every day he would enter into the class without being seen, but that day he had to enter into the class from the front door. M. Hamel didn't get angry. He rather said, "Go to your place quickly, little French. We were beginning without you." And then French noticed that M. Hamel was wearing his special clothes that he would wear on special days like inspection and prize days. Everything was very strange and serious, but he was very much surprised with the presence of the villagers in the class. And when French was thinking all about that, then suddenly M. Hamel told the class, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow, and this is your last French lesson." These words were like thunderclap to French, and he suddenly correlated everything कि yes, this was what they had put up at the town hall. My last French lesson? Why? I hardly knew how to write. I should never learn any more. I must stop there then. So many, look at the sentences, so many exclamation mark, because there was a great surprise. And French then said, I hardly knew. उसे सोचता है कि उसे तो अपनी भाषा लिखनी ही नहीं आती और अब सीख ही नहीं पाएगा. Why? How sorry I was not for learning my lessons, for seeking birds' eggs or going sliding on the Saar. He was feeling very bad that he didn't learn his lessons and simply passed his time. बच्चे जैसे टाइम व्यतीत करते हैं ऐसे उसने भी किया. क्या करता था? कहता है सीकिंग बर्ड्स एग्स, कि बर्ड्स के एग्स ढूंढने के लिए चला जाता था या कभी स्लाइड करने के लिए चला जाता था. माई बुक दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस ओनली अ व्हाइल अगो. अब उसके मन में क्या होता है? ही सडनली डिवेल्प्ड अ न्यू फाउंड लव फॉर हिज लैंग्वेज, क्योंकि अब लैंग्वेज और नहीं सीख पाएगा, तो अचानक से उसके मन में अपनी भाषा के लिए एक विशेष लगाव, एक विशेष प्रेम उमड़ पड़ता है. सोचता है कि उसकी वो किताबें जो थोड़ी देर पहले तक उसे एक न्यूसेंस लग रही थी, एक बकवास बेकार चीज़ लग रही थी, सो हैवी टू कैरी लग रहा था, कितना बोझ है जो उठाना पड़ता है. ग्रामर बुक्स थी चाहे या हिस्ट्री बुक्स थी, दे सडनली बिकेम लाइक ओल्ड फ्रेंड्स. उन दोस्तों की तरह बन गई. नाउ दैट आई कुड नॉट गिव अप, वो दोस्त जिनसे अब वो दोबारा कभी मिल नहीं पाएगा. एंड एम हैमल टू, द आइडिया that he was going away and that I should never see him again made me forget all about his ruler and how cranky he was. एम हैमल से कितना डर रहा था. हमने लेसन की बिगनिंग में पढ़ा कि एम हैमल बहुत गुस्सा होंगे, और आयरन रूलर भी उनके लिए उसने क्या यूज़ किया? वह टेरिबल आयरन रूलर. अब अचानक से ये सोचना कि ये किताबें अब कभी नहीं पढ़ पाएगा. एम हैमल भी यहाँ से चले जाएंगे क्योंकि वो फ्रेंच लैंग्वेज टीचर हैं, उन्हें यहाँ से जाना पड़ेगा. अचानक से ये सब बातें सोचकर वो भूल गया कि वो कितने स्ट्रिक्ट टीचर हैं, उनके रूलर के बारे में भूल गया, और ये भी भूल गया कि वो कितने क्रैंकी हैं. क्रैंकी मतलब चिड़चिड़ा, जिसे हम जो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, ज़रा सी बात पर चिढ़ जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, तो बड़ा ही क्रैंकी हैं, वो भूल गए. पुअर मैन, इट वॉज इन द ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन. ध्यान से पढ़े, क्योंकि इस लेसन में से शायद ही कोई पैराग्राफ ऐसा होगा जो आज तक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में ना पूछा गया हो. और
हर लाइन का एक, हर दूसरी लाइन का एक क्वेश्चन बनता है 2 मार्क्स के लिए। इतने सारे क्वेश्चन इस लेसन से आते हैं। इट वॉज द ऑनर, इन द ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स। अब अचानक से सारी चीजें उसे समझ में आ गई कि शायद इसीलिए जस्ट टू पे एन ऑनर। एंड नाउ आई अंडरस्टूड व्हाई द ओल्ड मेन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर। अब समझ में आ गया कि क्यों आए थे वो वहां सभी ओल्ड मैन। इन द बैक ऑफ द रूम दे वर सिटिंग देयर। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू, क्योंकि उन्हें भी बुरा लग रहा था दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वो स्कूल में क्यों नहीं ज़्यादा समय तक पढ़े। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग अवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस। और यहाँ से हमें पता लगा कि एम हैमल हैड स्पेंड 40 years इन दैट स्कूल। 40 साल उस स्कूल में उन्होंने पढ़ाया है, तो ये उनका तरीका था उन्हें धन्यवाद देने का कि उन्होंने 40 साल तक वहाँ पढ़ाया है। एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट for their country that was theirs no more. They were paying a thank not only to the language, to the teacher and also to the country that was theirs no more. अब वो देश उनका अपना नहीं रहा था। Why? Because it was now under the rule of Prussia. While I was thinking of all this, I heard my name called. French के दिमाग में ये सब चल रहा था कि तभी एम हैमल ने उसे पुकारा। इट वॉज नाउ फ्रेंड्स टर्न टू रिसाइट द लेसन। वट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू। अब आज उसे प्रिपेयर करने थे रूल्स फॉर पार्टिसिपल, लेकिन अब वो रूल्स पार्टिसिपल के प्रिपेयर तो नहीं कर पाया। क्या करे? अब उसकी टर्न थी उन्हें रीड करने की, उन्हें बताने की, विदाउट वन मिस्टेक। अब लास्ट लेसन है, अचानक से पता लगे तो वैसे ही एक सॉफ्ट कॉर्नर उसके लिए होता है अपनी भाषा के लिए, लेकिन फ्रेंच को तो कुछ भी नहीं आता अपनी लैंग्वेज का, क्या करें? बट आई गॉट मिक्सड on the very first word and stood there holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. अपने बेंच के सहारे खड़ा रहा, बहुत शर्मिंदा था, वेरी अशेम्ड, बहुत अशेम्ड फील कर रहा था क्योंकि एक भी वर्ड नहीं बोल पाया, हिम्मत ही नहीं हुई कि ऊपर देखे। And then I heard M. Hamel say to me, I won't scold you little French because you must feel bad enough. टीचर कहते हैं आज लास्ट लेसन में मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा क्योंकि तुम्हें खुद बहुत बुरा लग रहा है। सी हाउ इट इज, एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स, बाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। ये कंटेम्प्ट के लिए होता है। आई विल लर्न इट टुमारो। कि हम हर रोज क्या करते हैं, हम ये कहते हैं अरे अभी तो बहुत टाइम है, कल पढ़ लेंगे। ऐसे ही होता है आपके साथ भी। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट। दैट इज द ग्रेट ट्रबल विद अल्सेश। यही अल्सेश के लोगों के साथ प्रॉब्लम है। यहाँ के लोग क्या करते हैं, शी पुट्स ऑन। शी किसके लिए यूज किया गया है? रिमेंबर फॉर व्हाट हैज शी बीन यूज? शी हैज बीन यूज्ड हियर फॉर अल्सेश। अल्सेश के लिए यूज किया गया है, यानी यहाँ के व्यक्ति जो हैं उन लोगों के लिए यूज किया गया है। पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी अ फ्रेंचमैन एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज। कि अब वो बाहरी व्यक्ति, वो फॉरेनर्स आएंगे प्रशिया के, अब उनके अंडर चला गया है, वो क्या कहेंगे हमें कि यू प्रिटेंड होता है दिखावा करना, नाटक करना, कि आप रियल फ्रेंचमैन हैं ही नहीं। अगर आप अपने देश की भाषा ही नहीं बोल सकते तो आपको कोई अधिकार नहीं है अपने आप को उस देश का नागरिक कहने का। ना ही आप बोल सकते, ना ही लिख सकते। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच। कहते हैं लेकिन फ्रेंच तुम अकेले नहीं हो ऐसे। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विद। रिप्रोच वैसे होता है रिब्यूक, डांटना, अपने आप को कुछ कहना। कहता है कि हमें अपने आप को बहुत कुछ है समझाने के लिए, डांटने के लिए। वो किस किस पर ब्लेम डालता है? कहता है योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस एनफ टू हैव यू लर्न। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए वरीड नहीं थे, बिकॉज दे प्रेफर टू पुट यू टू द वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी। पेरेंट्स की क्या गलती बताते हैं? क्वेश्चन पूछा जा चुका है पेपर में कि उसके पेरेंट्स उसे सिखाना शायद नहीं चाहते थे। उन्होंने ये सोचा कि तुम कहीं जाकर काम करो, पैसे कमाओ, स्कूल डेली नहीं भेजा तुम्हें। एंड
एंड हाउ डिड एन हैमल ब्लेम हिमसेल्फ? ये क्वेश्चन लास्ट टू लास्ट ईयर आया था कि एम हैमल ने खुद को कैसे ब्लेम किया. कहते हैं आई हैव बीन टू ब्लेम. हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स? कि क्योंकि तुम पढ़ते नहीं थे, अच्छे बच्चे नहीं हो, इसीलिए मैं भी तो अक्सर तुम्हें अपने पौधों को पानी देने भेज देता था. एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे? क्या मैं तुम लोगों को छुट्टी नहीं देता जब मेरा छुट्टी करने का मन हो? तो वो इस तरह खुद को भी डांट लगाते हैं. Then from one thing to another, M. Hamel went on to the talk of French language. अब M. Hamel फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं. क्या कहते हैं? saying that what did M. Hamel say about French language? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं. He said that it was the most beautiful. क्या कहा उन्होंने? कि दुनिया की सबसे सुंदर लैंग्वेज है, सबसे अच्छी, the clearest, the most logical, सबसे स्पष्ट और सबसे ज़्यादा लॉजिकल, यानी रूल्स इस पर सभी लागू होते हैं, रूल्स पर चलती है. एंड वी मस्ट गार्ड इट among us and never forget it. हमें इसे अपने बीच बचाए रखना है. क्यों कहते हैं? Because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as it they had the key to their prison. अब वो क्या कहते हैं कि अगर हम कभी भी बंदी बन जाएं, गुलाम हो जाएं, तो उससे बाहर निकलने का एक ही तरीका है कि अपनी भाषा को हम ना भूलें. एंड देन ही ओपनड अ ग्रामर, रेड अस आवर लेसन. तो ग्रामर बुक खोली, एक लेसन पढ़ा, और क्या कहता है फ्रेंच? आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट. कहता है आज तो मैं हैरान हो गया, मुझे इतनी अच्छी तरह समझ में आ रहा था. ऑल ही सेड सीम सो ईजी. आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली. कहता है शायद मैंने आज तक ध्यान से पढ़ा ही नहीं था, कभी सुना ही नहीं था. और साथ साथ क्या कहते हैं? ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस. और शायद एम हैमल ने भी इतनी पेशेंस के साथ नहीं पढ़ाया था. इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वॉन्टेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे एंड टू पुट इट ऑल इन टू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक. ऐसे लग रहा था मानो आज वो बेचारे, पुअर मैन का मतलब गरीब नहीं, बेचारे इंसान. बेचारा क्यों कहा? क्योंकि लास्ट फ्रेंच लेसन है. मानो आज वो इस आखिरी लेसन में हमें सब पढ़ा देना चाहते हैं, सब सिखा देना चाहते हैं. तो यहाँ तक आप इस लेसन को ध्यान से पढ़ें और डिफ़िकल्ट वर्ड्स अपने पास लिख लें. थैंक यू.